Today is our lab number 9, which is related to MS Visio. First of all, I am going to open up our CMS. In our course, I have already uploaded your lab file. You can easily access from there. In the lecture notes, you will have your file. This is lab 10 MS Visio. Download this file. Okay. Introduction to MS Visio. First of all, we are going to learn the basics of MS Visio, how to create logical diagram in MS Visio, how we can add text in this particular format of the diagram, and how we can create the flow chart of the diagram using different shapes and connections. Okay, getting familiar with the MS Visio software. Introduction. MS Visio Office is drawing and diagrammic software that helps you to transform concepts into a visual representation. Here we are going to focus on how we can create logical diagram and flow diagram when drawn in Visio. Okay. First of all, the getting started time period is showing the basic shapes and symbols in MS Visio. The basic shapes and symbols in MS Visio. Flowcharts use special shapes to represent different type of actions. Because we are studying this particular thing in our ICT, it can be helpful to generate the flow diagram in your CP programs. In your computer programming, you can easily generate different kind of flow diagrams. Any of the scenario you want to discuss related to the any project, any Access project or any Excel project or any computer science project, you can generate up your flow diagram, that how your particular steps will be performed after one completion to another process. Okay. For example, if your team is working together to generate a simple kind of scenario, then you have to generate the flow diagram of this particular thing. The start and end symbol is this. The terminator symbol marks the starting and ending point of the system. It usually contains the word start and end. The rectangle box is containing the action button. Add 2 curves of flow. Okay, means the process or the action. What kind of procedure you are going to follow, that will be described in the rectangle box, this box. Okay. And then document. A printed document or a report will be generated like this. If you have multiple reports, then there is a symbol having multiple collection of this symbol is known as the multiple documents. Okay. This is the single document, so that's why this is a simple one row structure. And if there will be the multiple documents, then this structure will be multiplied by other structures. I will show you that symbol when I will open up the MS Visio software in front of you. This is the decision statement. In the decision statement, you are going to write down like if the condition is equals to 2, then it's the number is odd or even. Then the decision statement will be taken here. कि आपके पास डिसीजन आप ले रहे हो तो आप यहाँ पर ये सिंबल यूज करोगे. ओके स्टूडेंट्स. इनपुट एंड आउटपुट सिंबल इस तरह से शो होगा आपका. इनपुट एंड आउटपुट द रिप्रेजेंट्स मटीरियल ऑफ इंफॉर्मेशन एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम. मतलब अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर मटीरियल, अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पास डिस्प्ले हो रही है, जो कि आपके पास आउटपुट में शो हो रही है, तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो. The connector is basically going to connect 2 symbols. For example, your flow diagram is very long and it cannot be suitable for generating it on first page, so you can use this connector at the end of your diagram, and after creating this first diagram, then you can generate this connector to the second page of your diagram. ठीक है, मतलब आप अपनी एंडिंग जनरेशन पे और अपने स्टार्टिंग जनरेशन दोनों पर ये कनेक्टर ऐड करोगे. जिस तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस होते हैं, लाइक इंडिकेट्स. अगर मैं राइट डाउन कर रही हूँ, इंडिकेट जो है इंडिकेट यहाँ पर एंड होगा. CATS जब हमें यहाँ राइट करना होता है तो हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, अपॉस्ट्रोफी हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं. यहाँ पर हम लोग जो डैश सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये इंग्लिश की ग्रामेटिक्स के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर स्पेस कम है हमारे पास, तो अगर आपके पास स्पेस कम हो और फ्लो डायग्राम आपने पूरी जनरेट करनी है, तो आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो एट द एंड ऑफ योर डायग्राम एंड एट द स्टार्ट ऑफ योर डायग्राम. And these are the lines to show the flow of your program.
एरो के साथ आपने डायरेक्शन शो कर दी कि आपके डेटा की फ्लो किस तरह हो रहा है, ठीक है। व्हेन यू विल ओपन अप योर फर्स्ट पेज दैट यू विल कंटेन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। ये आपके पास उस वक्त का सिनेरियो जब आपके पास फर्स्ट पेज ओपन होगा, फर्स्ट विंडो, आप सिंपल फ्लो चार्ट के ऊपर जाओगे और देन आप फ्लो चार्ट जो है डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे। दीज विल बी द सिम्बल्स विल बी प्रेजेंटेड टू यू। मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए सिम्बल्स, प्रोसेस, डिसीजन, स्टार्ट एंड एंड, ये डॉक्यूमेंट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट का सिंबल आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक आउट करोगे तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट का सिंबल भी आपके पास शो हो जाएगा। मैं एमएस विजुअल ओपन अप करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट का सिंबल शो कर दूंगी। एंड देन एरोज आपके पास बेसिकली जब आप एक फर्स्ट शेप आपने इनपुट कर ली अपने टेम्पलेट के अंदर, तो फिर आपके पास एरोज जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एडिंग द कनेक्टर्स, अब कनेक्टर ऐड करने सेलेक्ट द डायमंड शेप आपने सेलेक्ट कर ली, राइट क्लिक किया, आपने एडिट कर दिया। कनेक्टर्स आपके पास टॉप ऑफ द सॉफ्टवेयर शो हो रहे होंगे। अब कनेक्टर्स शो कर सकते हो कि आपको किस तरह से ग्लू करना है अपने कनेक्टर को, कहाँ पर आप अपने कनेक्टर को जो है वो ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इजी थिंग, यू कैन इजीली जनरेट इट एंड यू कैन इजीली परफॉर्म दिस। लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी लाइक दिस। टेक्निकल प्रूफ इज ओके, ग्रामर चेक इज ओके, पब्लिश द डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी पर्सन ने राइट डाउन किया है, वो डिस्प्ले करना चाह रहा है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट आपका टेक्निकली प्रूवन जो है वो राइट डाउन हुआ वह सही है, तो आप उसको ओके करके आगे पास कर सकते हो। जस्ट ये आपके पास ये देखिए ये बॉक्सेस आपके पास किस वर्क के लिए, ये डिसीजन स्टेटमेंट है, प्रूफ इज ओके, ग्रामर इज ओके। यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सम काइंड ऑफ प्रोसेस हो रहा है। और ये स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट आपके पास, पब्लिश द डॉक्यूमेंट, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपने उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर जा सकते हो softfamous.com माइक्रोसॉफ्ट विजुअल प्रोफेशनल डाउनलोड, ठीक है। आप जैसे ही इसे ओपन अप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि आपके पास 64 बिट की आपके पास विंडो इंस्टॉल्ड है या 32 बिट की। जो आपके पास विंडो इंस्टॉल हुई है उस विंडो को आपने यहाँ पर सेलेक्ट आउट करना है। डाउनलोड करने के बाद, सिंपल डाउनलोड के बाद आप डाउनलोड प्रोसेस पे जाओगे। डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर शो हो रहा होगा। जस्ट आपने इसे क्लिक आउट करना है और आपके पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना होगा। मेरे पास पहले मैंने 64 बिट का डाउनलोड कर लिया था, उसके बाद वो जो है वो सही से प्रॉपर नहीं वर्क किया। 86 बिट्स आप उस वक्त इंस्टॉल करोगे जब आपके पास 32 बिट्स की विंडो इंस्टॉल हुई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल आपने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करके ओके करके सबमिशन करना है। इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक करना है, कस्टमाइज पर मत जाइएगा। यहाँ पर सिंपल आप यस कर दोगे तो वो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये आपके पास लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग यहाँ पर इजीली ले सकते हैं। अब हम ओपन अप कर लेते हैं विजुअल, एमएस विजुअल अपने पास ओपन अप करते हैं, जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। सिंपल हमने ओपन कर लिया। हम इसी एग्जाम्पल को एक दफ़ा चेकआउट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी जो एग्जांपल्स आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। यहाँ पर जस्ट मैं इसे कैंसिल आउट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्टिवेट इट राइट नाउ। अब मैं यहाँ पर सर्च आउट करूँगी कि हमारे पास डेटा की फ्लो डायग्राम कहाँ पर जनरेट अप होगी। फ्लो डायग्राम आप लोगों ने सर्च आउट करनी है। डेटा फ्लो डायग्राम्स आपके पास कहाँ पर हैं, देखें ये बहुत सारी डायग्राम्स आपके पास सामने शो हो रही है, ठीक है। फ्लोर प्लान, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक ब्लॉक डायग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग डायग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट्स, बहुत सारे यूएमएल केसेस, बहुत सारे वर्क फ्लोज आपके पास डायग्राम जनरेट हो सकते हैं। टाइमलाइन, डेटा फ्लो मॉडल डायग्राम, ये सारे के सारे आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक दफ़ा और चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास हमने कौन सी डायग्राम डिस्कस करनी है। हमने डिस्कस करनी है फ्लो चार्ट टेम्पलेट डायग्राम्स। फ्लो चार्ट टेम्पलेट डायग्राम्स हमारे पास कौन सी हैं, बेसिक फ्लो डायग्राम हमारे पास जनरेट अप करनी है हम लोगों ने, फ्लो डायग्राम। अब हमारे पास फ्लो डायग्राम बेसिकली हम लोगों ने लेनी है। डेटा फ्लो डायग्राम क्रिएट, डेटा फ्लो डायग्राम हम क्रिएट कर चुके हैं। देखते हैं हमारे पास किस तरह के सिंबल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। डेटा फ्लो डायग्राम हमारे पास शो हो गई है। मोर शेप्स पर जाकर हम यहाँ पर सर्च आउट कर लेते हैं विजुअल। यहाँ पर आ गए हमारे पास फ्लो चार्ट। आप यहाँ पर क्लिक आउट कर दोगे और फ्लो चार्ट में आपके पास आ गए बेसिक फ्लो चार्ट शेप्स, ठीक है। जब आपके पास बेसिक फ्लो चार्ट शेप्स
शो हो गए, तो आपके पास आ गए प्रोसेसेस, डिसीजन, स्टार्ट एंड, डॉक्यूमेंट, डेटा, ये सारे के सारे आपके पास कैटेगरीज जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहले का ये जो बना हुआ है टेम्पलेट, यहाँ पर हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम फर्स्ट पर हमारे पास जनरेट हुई हुई है, और देखिए यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स सिलेक्शन हुई भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन की है बाय द वे एडिशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर जनरेट अप करने जा रहे हैं अपना, तो फर्स्ट प्रोसेस हमने यहाँ पर ले लिया, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। प्रोसेस के अंदर टेक्स्ट क्या राइट हुआ था हमारे पास, टेक्निकल प्रूफ के नाम से हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट जनरेट हुआ था। वही सारी फर्दर एडिटिंग आप लोगों की है, जिस तरह से आपके पास परफॉर्म हो रहा होता है सारा वर्क वर्ड के ऊपर, इसी तरह से आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप जिस तरह के ब्लॉक चाहो आप जनरेट कर सकते हो। कनेक्टर आपने यहाँ पर अब ऐड करना है। अब कनेक्टर किस तरह से आप ऐड करोगे, ये रहा आपके पास कनेक्टर। सेकंड शेप आप यहाँ पर ले सकते हो। सेकंड शेप आपकी डिसीजन की शेप थी, आपने डिसीजन की शेप उठाकर यहाँ पर ड्रैग कर दी। ठीक है, फॉर्मेटिंग आपने सेम रखनी है, आपने फॉर्मेट प्रिंटर पर कर दिया, और आपकी कंप्लीट डिसीजन स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, अब इस डिसीजन को आपने क्या करना है, सेट करना है। आपने यहाँ पर टेक्स्ट एडिट करना है। टेक्स्ट एडिट करते हुए आपने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया। सेकंड टेक्स्ट आपके पास इस एग्जांपल में क्या शो हो रहा था वो देख लेते हैं हम। प्रूफ इज ओके, तो प्रूफ ओके के नाम से हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है कनेक्शन। कनेक्टर हमने यहाँ से लेकर यहाँ दे दिया, तो ये हमारे पास कनेक्शन बिल्डअप हो गया। कनेक्शन हम यहाँ से लेकर यहाँ पर भी दे सकते हैं, लाइक दिस। जस्ट आपने उसको ड्रैग करना है। इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो कंप्लीट फ्लो डायग्राम ऑफ योर पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो कर देती हूँ, जो कि आप लोगों की फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। ऑर्डरिंग अ बुक, मतलब आप एक बुक ऑर्डर कर रहे हो अपनी लाइब्रेरी के अंदर जाकर, या वेबसाइट के ऊपर से आप एक बुक ऑर्डर कर रहे हो, तो उसका प्रोसीजर आपके पास क्या होगा। ऑर्डरिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी और फ्रॉम वेबसाइट, फ्लो चार्ट या डेटा फ्लो डायग्राम। अब आप इमेजेस में जाओगे, ये देखें जिस तरह से आपके पास ये प्रोसीजर शो हो रहे हैं। कस्टमर प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर रिक्वेस्ट, सिस्टम जनरेट कन्फर्म द ऑर्डर। अब ये डायग्राम जो आप लोगों ने बनानी है, डेटा फ्लो डायग्राम, ये आपने खुद अपने माइंड से बनानी है। ठीक है, आपको यहाँ से कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ये बेसिकली मेरा शो करने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके पास फ्लो डायग्राम जनरेट किस तरह होगी। इस तरह की डायग्राम जनरेट नहीं होगी। ठीक है, ये आपके पास डेटा फ्लो डायग्राम जो है ये फ्लो चार्ट नहीं है, ये आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर शो हो रहा है। आपने जिस तरह की डायग्राम बनानी है, आपने बनानी है इस तरह की डायग्राम, जहाँ पर आपके पास स्टार्ट एंड एंड शो हो रहा हो कि आपके पास स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, यस एंड नो की स्टेटमेंट्स किस तरह से वो जनरेट अप करेगा, डिसीजंस किस तरह से लेगा, और फिर आपके पास उस डायग्राम का जो है वो एंड रिजल्टेंट शो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने जनरेट करनी है अपनी डायग्राम। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली आप लोगों के लैपटॉप कौन से इंक्लूड हुए होंगे। आपके पास ये वाले लैपटॉप आप लोगों ने परफॉर्म नहीं करने, जो कि गिवन है आपकी शीट में। ये मैं डिलीट कर दूँगी, आपकी शीट जो है वो अपडेट हो जाएगी। आप लोगों ने बेसिकली जो लैपटॉप जनरेट अप करने हैं वो आपके लैपटॉप होंगे ऑर्डरिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, टेकिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, फी पेमेंट प्रोसीजर इन यूनिवर्सिटी, रिपोर्टिंग अ क्राइम इन पुलिस स्टेशन एंड हायरिंग अ कैब। ये 5 टास्क आप लोगों ने बेसिकली जनरेट अप करने होंगे, और आप लोगों ने इसी तरह से सर्चिंग करनी है और आपने अपना पर्टिकुलर जो फ्लो डायग्राम है वो जनरेट अप करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी फ्लो कंट्रोल्स किस तरह से वर्क करते हैं। मैं यहाँ पर आपका लेक्चर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लैब जो हमारी है उसमें भी इसी तरह से आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा दें और आपको एक्सरसाइजेस वगैरह सब बता दें, ताकि आप लोग इजीली परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग टाइमली सबमिशन LMS पर अपलोड कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।